Today we are reading from Oxford Progressive English Unit 1 Elephants. This unit tells us an interesting information about elephants. Elephants are friendly, loving and thankful animals like human beings. They can be dangerous and revengeful if anyone did wrong with them, as we can see in the unit text 1 revenge, that the elephant killed the person who did wrong with his honor. Elephants had been using during wars in the battlefield. Mughals kings had been using them for their transportation. एलिफेंट्स के बारे में एक अहम चीज़ ये भी है कि वो जब किसी ख़तरे में होते हैं या कोई एक उनमें से हाथी ख़तरे में होता है और तो वो कोई ऐसी आवाज़ निकालता है जिससे दूसरे सारे जंगल में मौजूद हाथी, चाहे वो उससे काफ़ी दूर भी बैठे हों, वो उस ख़तरे को महसूस कर लेते हैं और वो उस हिफाजत के तौर पर छुप जाते हैं। एलिफेंट को उसके हाथी दांतों की वजह से भी मारा जाता है। टुडे वी आर रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट टू मैकिया, जिसमें ये बताया गया है कि जो फीमेल एलिफेंट है वो किस तरह एक डॉक्टर का थैंक यू अदा कर रही है, शुक्रिया अदा कर रही है। एंड न्यू विदाउट क्वेश्चन दैट एन एलिफेंट कैन बी ग्रेटफुल for relief given to it from pain and sickness. For example, I remember one elephant, Makia. She had fearful lacerations on the barrel of her back from tiger claws, and I treated her for them every day for 3 weeks. डॉक्टर ने बताया कि वो 3 हफ्ते तक एक जो फीमेल एलिफेंट है जिसका नाम मैकिया है उसके ज़ख्मों का इलाज करता रहा, जो कि शेर के पंजों की वजह से उसकी कमर पे आए थे। in the early stages she suffered great pain, but although she make a lot of fuss, or rather as an 8-year-old child might have done, she always gave way because I was determined. वो कहती है क्या बताता है कि शुरू में उसने बहुत ज़्यादा शोर किया और उसको तंग किया, लेकिन फिर भी वो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए रास्ता देती थी क्योंकि वो उसका पक्का इरादा था कि वो ठीक हो। एंड शी लेट मी गो ऑन व्हेन शी वाज sufficiently healed. I sent her back to camp under a reliable bound with instructions that she was to be given light dressings, a fly repellent on the wounds, के उसको बाद में मैंने 3 हफ्तों के इलाज के बाद उसको एक बर्मन डॉक्टर के हवाले किया और कहा कि इसको हल्की सी पट्टी की जाए ताकि वो उसके ज़ख्मों पर मक्खियाँ ना बैठ सकें। इन द सेकेंड पैराग्राफ, आई डिडंट सी हर अगेन फॉर 2 months. I was having a cup of tea in camp outside my tent while 7 elephants were being washed in the creek nearby, ready for me to inspect them. उसने बताया कि 2 माह तक उसने उस एलिफेंट को नहीं देखा, यानी मैकिया को नहीं देखा। लेकिन एक दिन वो जब नदी के पास चाय पी रहा था और दूसरे हाथी साफ हो रहे थे ताकि वो उनको चेक कर सके। द लास्ट एनिमल टू कम आउट ऑफ द क्रीक एंड टू रिटर्न टू कैंप एंड टू ड्राई अप बिफोर इंस्पेक्शन वाज मैकिया. As she passed me about 50 yards away with her rider on foot following her at her heel, I called out more to order to greet him and show that I recognized him than because of an interest in the animal, which I was anyhow going to inspect in less than an hour's time. How is Makia's back? डॉक्टर ने कहा कि मैंने उसको दूर से ही, जो 50 कदम के फासले पर अभी वो दूर थी, तो मैंने उसको आवाज़ दी और उससे पूछा और उससे बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हारी अब ज़ख्म कैसा है. पैराग्राफ 3, her rider didn't reply as he didn't caught what I said, but Makia swung around at right angles to the direction in which she was going and came towards me. उसने कहा कि उसका जो देखभाल करने वाला है वो उसको तो मेरी बात की समझ ना आई, लेकिन मैकिया फ़ौरन मेरी तरफ मुड़ी. शी वॉक स्ट्रेट अप टू मी where I was sitting. I patted her on the trunk and gave her a banana off my table, and then without any word of command she dropped into the sitting position. और उसने कहा कि मेरे किसी हुक्म के बगैर ही वो बैठ गई and leant over right towards me, और बिल्कुल मेरे आगे झुक गई so as to show me her back. Having patted her, I told her to get up and away with the
Away she went, leaving me with the agreeable conviction that she had come to say thank you. अब उसके अंदाज से ये लग रहा था कि वो मेरा सिर्फ शुक्रिया अदा करने आई है. Then I began to suspect that perhaps on hearing of my voice, which she had become familiar, she had done it merely from habit. क्योंकि वो मेरी आवाज़ पहचान चुकी थी, इसलिए वो आदतन आई और अपने ज़ख्म दिखाए. Paragraph 4. But later on, when I inspected her, I got a surprise. लेकिन बाद में जब मैंने उसे चेक किया तो मैं हैरान हुआ. She was the last in the row. I went over her back from carefully kneading the wounds with my hands, and I found one little hole which still separated. और मैंने देखा कि उसका एक ज़ख्म जो है वो अभी तक सही नहीं हुआ था और उसमें से खून निकल रहा था. There was great tenderness along a 9 inches hole where the wound had healed, or it was undoubtedly infected. कि उसका 9 इंच लंबा जो ज़ख्म है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ था और उसमें अभी तक इन्फेक्शन थी. मैं क्या, let me open it up to full length here and there, although my doing so obviously gave her great pain. कि इस तरह मुझे दबाने से और ज़ख्म दिखाने से अगरचे उसको बहुत तकलीफ़ हुई थी और हो रही थी, बट शी वॉज अ गुड पेशेंट, लेकिन वो अच्छी मरीज़ थी, यानी साबिर मरीज़ थी. दिस मेड मी थिंक ओवर द इंसिडेंट अगेन. इसने इस वाक़े ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया. आई कैन नेवर बी क्वाइट sure that she came and showed me her back in order to tell me that I was still painful. इस वाक़े उसको मेरे पास आने का मकसद सिर्फ ये दिखाना नहीं था कि वो कितनी तकलीफ़ में है, बट आई एम श्योर दैट शी लाइक मी, शी ट्रस्टेड मी. बल्कि मुझे यकीन है कि वो मुझे पसंद करती थी, मेरे पे एतबार करती थी, एंड वॉज ग्रेटफुल, और मेरी बहुत शुक्रगुजार थी, एंड वॉज वेरी गुड, एंड यू आर वेरी गुड फ्रेंड्स, और हम बहुत अच्छे दोस्त थे. थैंक यू.